Presenting iSIF by ICICI Prudential Mutual Fund. Hello everyone, I am Arpreet Sabarwal. Welcome you all to the podcast on new fund by ICICI Mutual Fund, SIF X100 and SIF Hybrid Long Short. So today we have Riddhi Gupta with us from ICICI, product expert, who's going to share more information on SIF and will also help us solve all the queries we have regarding it. Thank you, ma'am. Thank you for this opportunity. Riddhi, what are specialized investment funds? The specialized investment funds by ICICI are known as ISIFs. This is a new investment avenue which has been introduced by SEBI, जिसमें the minimum ticket size is at 10 lakhs. अब it is more flexible than a mutual fund because इसमें opportunity है आप derivatives में भी trade कर सकते हो and advantage over a PMS and a AIF because वहाँ पे ticket size is 50 lakhs and 1 crore. यहाँ पे you can even start with a 10 lakh rupees of minimum investment. Categories of investment strategies, which strategies are being launched under SIF? So we have broadly three different categories in SIF. Equity, debt, hybrid, जो client के risk profile के हिसाब से है, जो usually mutual fund, PMS, AIF में भी होता है. बट अभी हमारे पास जो दो प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए, वन इज एन इक्विटी प्रोडक्ट, द अदर इज अ हाइब्रिड प्रोडक्ट. इक्विटी प्रोडक्ट का नाम है इक्विटी एक्स टॉप 100 लॉन्ग शॉर्ट फंड. द अदर हाइब्रिड प्रोडक्ट इज नोन एज द हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड. ये दोनों स्ट्रेटजीज के लिए जो न्यू फंड ऑफर है, इनकी डेट्स क्या हैं? The fund will open for investments from 16th of January till 30th of January. Basically 15 days का window है for anyone to invest in the fund. Minimum ticket size is 10 lakhs. Explain about ISIF Equity X-Top 100 Long Short Fund, Riddhi. So ISIF Equity X-Top 100 Long Short Fund, it is a pure equity product. As the name suggests, X100 है, मतलब हम predominantly small and mid cap में invest करेंगे. As per regulations, minimum has to be 65% has to be in small and mid cap. Remaining हमारा कुछ पैसा debt में होगा, which could be used to take exposure into futures and options. Added advantages हम लोग derivatives में भी trade कर सकते हैं to basically reduce the volatility, portfolio hedge करने के लिए. Hedging plus derivatives में भी different strategies है. हम covered calls कर सकते हैं, arbitrage कर सकते हैं. We can take long short positions in index and stocks, जिससे कि fund का volatility कम हो. As per SEBI regulation, इसमें हम unhedged positions भी ले सकते हैं up to 25%. That's about the equity fund. Tell us about Hybrid Long Short Fund. जो हमारा हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड है, दैट इज अ बैफ प्लस प्रोडक्ट. बैफ मतलब अपना बैलेंस एडवांटेज फंड, उसके एडिशनल हम लोग फंड जिसमें रिटर्न्स हम लोग इसमें टारगेट कर रहे हैं. इसमें हमारा जो इक्विटी है, मतलब हम मार्केट में कितना एक्सपोजर लेंगे, कितना आपका एक्सपोज रहेगा पोर्टफोलियो टू द मार्केट, रेंज इज -7.5 to 75%. एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम मेरा मिनिमम ग्रॉस 65% के अबव होना चाहिए बिकॉज इस फंड में इक्विटी टैक्सेशन है. एक साल के बाद 12.5% का टैक्स, उससे पहले 20%. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स इज एट 20%. इट इज़ फॉर अ कंजर्वेटिव क्लाइंट जिसको अपने फिक्स्ड इनकम डेट से कुछ एडिशनल रिटर्न्स बनाना है. इसमें एडवांटेज है, हम अपना एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं कंपेयर टू अ ट्रेडिशनल बैलेंस एडवांटेज फंड. 65 to 75% जब हमें लगता है कि मार्केट में तेजी है या मार्केट के ऊपर हमारा आउटलुक पॉजिटिव है. प्लस एट द सेम टाइम थ्रू डेरिवेटिव्स और थ्रू हेजिंग, थ्रू कवर्ड कॉल्स हम आपकी वॉलेटिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं बिकॉज हाइब्रिड कंजर्वेटिव क्लाइंट यही चाहता है कि उसके फंड में वॉलेटिलिटी कम हो, स्टेबिलिटी ज़्यादा हो. सो दैट प्रोडक्ट इज फॉर अ कंजर्वेटिव client who is looking just for a BAF plus kind of returns. Riddhi, can you explain कि cover calls क्या होती है? Covered call एक थोड़ा टेक्निकल टर्म है, बट इट इज़ वन ऑफ द वेज ऑफ ट्रेडिंग इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट. मैं एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ. फॉर एग्जांपल 1000 रुपये का मेरे पास कोई स्टॉक है एंड द स्टॉक प्राइस फॉल्स फ्रॉम 1000 to 950. तो मेरे को 50 रुपये का लॉस हो गया.
बट एट द सेम टाइम मैं एक कॉल ऑप्शन राइट कर देती हूँ एट 1050, जिसपे मेरे को 20 रुपए का प्रीमियम मिलता है। तो दो मेरा स्टॉक 1000 से 950 पे गिरा, मेरा 50 रुपए का लॉस हुआ, बट जो मैंने कॉल ऑप्शन राइट किया है उसमें मेरे को 20 रुपए का प्रीमियम मिला। तो नेट नेट कितना हो गया, 50 मेरा लॉस हुआ, 20 मेरे को मिला 30 रुपीज। तो जो मेरे को 50 का लॉस होना था वो मेरे को सिर्फ 30 का हुआ है। दैट्स हाउ आई एम प्रोटेक्टिंग माई डाउन साइड। इन स्ट्रेटेजीज में मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट क्या है? The minimum investment is 10 lakhs, which is at pan level across जितने भी ICICI के सिर्फ प्रोडक्ट्स होंगे, तो minimum invested at pan level has to be 10 lakh rupees. क्या SIF में SIP के थ्रू भी इन्वेस्ट किया जा सकता है? Yes, definitely हम लोग सिप कर सकते हैं, बट एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम 10 लाख रुपए मिनिमम होने चाहिए फंड में, उसके ओवर एंड अबव हम सिप कर सकते हैं इन एन SIP। तो इसका मतलब पहले हमें SIF में 10 लाख इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद हम उसको और टॉप अप कर सकते हैं सिप से। बिल्कुल, 10 लाख रुपए मिनिमम, उसके ऊपर वो सिप स्टार्ट कर सकता है। सिप ओपन एंडेड होता है या क्लोज एंडेड? SIF कैन बी ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, प्लस इनफैक्ट वो इंटरवल बेस्ड भी हो सकते हैं। मैं बहुत ब्रीफली बताती हूँ कि टू गिव एन आइडिया ओपन एंडेड क्लोज एंडेड क्या होता है। ओपन एंडेड प्रोडक्ट इज या ओपन एंडेड फंड इज जिसमें आप एंट्री एग्जिट कभी भी कर सकते हो। क्लाइंट कभी भी अपना पैसा डाल सकता है, कभी भी एग्जिट कर सकता है, वही 1 डे का रिडेम्पशन साइकिल है। और क्लोज एंडेड होता है वेयर द फंड इज ओपन ओनली फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें हम क्लाइंट्स का इन्वेस्टमेंट लेते हैं। व्हेन द टेन्योर ऑफ द फंड खत्म हो जाता है तो ऑटोमेटिकली पैसा रिडीम हो जाता है। तो क्लाइंट के पास एग्जिट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम का फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है और एक फिक्स विंडो में वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। इंटरवल बेस्ड फंड्स होते हैं जिसमें दोनों फीचर्स होते हैं, ओपन एंडेड के भी क्लोज एंडेड के भी। बट जो अभी हमारा एक्स टॉप 100 इक्विटी प्रोडक्ट है और जो मेरा हाइब्रिड प्रोडक्ट है, बोथ आर ओपन एंडेड। फ्लेक्सिबिलिटी है एंट्री एग्जिट करने का क्लाइंट का, 1% फॉर 12 मंथ्स का एग्जिट लोड है, उसके पर वो चाहे वो कभी भी रिडीम कर सकता है। 1 डे का रिडेम्पशन साइकिल है, पैसा उसको एक दिन में आ जाएगा। How is compliance with the minimum investment threshold investment monitored? सो एज पर कंप्लायंस वी हैव टू इंश्योर कि 10 लाख रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट है इन दी SIF। एट एनी पॉइंट्स अगर इन्वेस्टमेंट 10 लाख से नीचे जाता है तो हम क्लाइंट के यूनिट्स को फ्रीज कर देते हैं। उसको एक नोटिस जाता है, 30 डेज का नोटिस पीरियड होता है, जिसमें क्लाइंट को अपना पैसा एटलीस्ट मिनिमम 10 लाख रुपए टॉप अप करना है। इफ द क्लाइंट डज नॉट गिव अस मनी तो वो 30 दिन के बाद, उसके अगले 30 दिन के एंड पे जो नैब होगी उसको पैसा अपने अकाउंट में वापस मिल जाएगा, बट मिनिमम 10 लाख रुपए होना चाहिए इन सिप। If my remaining value falls below 10 lakh, तो क्या मैं जो यूनिट्स हैं रिमेनिंग उनको रिडीम कर सकती हूँ पार्शली? सो क्लाइंट पार्शियल रिडेम्पशन तभी कर सकता है उसका मिनिमम 10 लाख रुपया SIF में है। अगर उसका अमाउंट 10 लाख से नीचे है उसमें पार्शियल रिडेम्पशन हम अलाउ नहीं करेंगे। तो एनी अमाउंट अबव 10 लाख वी कैन रिडीम, बट बिलो इट वी विल नॉट बी एबल टू। Thank you, Riddhi, for your valuable information on SIF. I hope investors have gained a lot of knowledge and will come forward for their investments through SIF, as PMS and EIF, if it's not possible, at least they can invest in SIF and gain the experience. Thank you, ma'am, for the wonderful opportunity. I hope the session is useful for all the investors. Investments in specialized investment fund involves relatively higher risk, including potential loss of capital, liquidity risk, and market volatility. Please read all investment strategy related documents carefully before making the investment decision.